जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरु जी अनंतम कोटि शुकराना गुरु जी, मेरे परिवार ਤੇ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੋਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕੱਲ ਉਹ ਜੋਬ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਔਰ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ, ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਜੇ ਉਹੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਉਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਲਾਵਰ ਮੰਗਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੀ ਫਲਾਵਰ ਬੇਟੀ ਲੈ ਆਈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਘਰ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ, ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ 4 ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਹੁਣ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਓਨਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ 10% ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਵੈਲਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਥੋੜਾ-ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਭੁੱਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਕਿਚਨ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਚਨ 'ਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਕਰਿਓ। ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे, लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। जय जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय जय संगत जी। गुरु जी लोहड़ी दियां लख लख मुबारकां ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਹੈ, 13 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, शिव जी ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਵੇਰੇ ਮੰਦਰ शिव जी को जल चढ़ाओ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਚਲ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਓ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੋਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ, 13 ਹੀ 13 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, 13 ਹੀ 13 13 ਹੀ 13। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ शिव जी ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਭ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ।
ਇੰਨੇ ਪਾਏ ਬਤਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਦਿੱਤਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲਈ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਊਂਗਾ ਤੁਝਸੇ ਮਿਲਣੇ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਸੰਕੇਤ ਸਮਝਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਕੇਤ, ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਬੁੱਧੂ ਬੱਚੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੂ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਚਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय संगत जी। गुरु जी सेवा प्रवान कर लेना, गुरु जी का हुक्म सी 11 ਵਾਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦਾ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਅਣਗਿਣਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ। ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जय जी, गुरु जय जी, जय संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं।
हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी मुझे संध्या वाला के शुक्राना सत्संग करने के लिए हमेशा बोलते हैं। मैं 2 दिन भूल जाऊंगी तो गुरु जी फिर से मुझे याद दिला देती है, संध्या वाला शुक्राना सत्संग कर। तेरे को कितनी बार बोला संध्या वाला शुक्राना सत्संग कर, इससे तेरा भलाई है, ये तेरे सारे अटका हुआ काम बन जाएगा, तू बस शुक्राना कर, सिमरन कर। बार बार मुझे यही मैसेज देते हैं। तो मैं गुरुजी जब भूल जाती हूँ, कोई काम काज में जाती हूँ या तो बाहर रहती हूँ तो भूल जाती हूँ, प्लीज़ गुरुजी क्षमा कर दो। अभी मैं संगत जी गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के संध्या वाला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने तो बहुत अच्छा लगता है और सत्संग भी बहुत होते हैं। कौन सा बोलूँ, क्या बोलूँ, मेरे को तब समझ में नहीं आता है कौन सा पहले बोलूँ। कल क्या हुआ संगत जी, कल गुरुवार थे, बृहस्पतिवार था, तो गुरुजी मुझे पहले ही मुझे टेलीपैथी मैसेज में बोला एक छोटा सत्संग कर घर पे। तो एक सत्संग भी सुनाया। उस सत्संग में एक आंटी खुद अकेला ही सत्संग किया था, वो हलवा बना के भोग लगा दिया था। तो गुरुजी ने सत्संग में मुझे बोला था तेरा हिंट है, तू समझ जा। तो मैं भी हलवा बनाकर चाय बिस्किट प्रसाद देकर और फ्रूट्स रख के मैंने एक घंटा की सत्संग किया है। और मुझे मोबाइल में बार बार ओम दर्शन भी हुआ। गुरुजी के हंसते खिला हुआ चेहरा मुझे मेरे सामने बार बार आ रहा था, तो मैं धन्य हो गई। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे को भी बहुत अच्छी लग रही थी कल सत्संग करने में। मुझे यही लग रहे थे गुरुजी मेरे पास ही बैठे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ऐसे फीलिंग दिलाने के लिए। और कल दिन बहुत अच्छा गया संगत जी। मैं सत्संग करके मैं दोपहर में साईं बाबा मंदिर में गए, वहाँ पे भी बहुत अच्छे से पूजा पाठ हुआ है। बहुत आनंद मिला है और मंदिर से मेरे को बड़े एक बाबा की माला मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद कल खाटू श्याम की भी बहुत भजन हो रहा था। खाटू श्याम के सामने बैठ के सब भजन कर रहे थे, वहाँ पे भी प्रसाद मिला है। खाटू श्याम को देखने में इतनी अच्छी लग रही थी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, ये सब मुझे दिखाने के लिए। फिर संगत जी मैंने कल हमारे आसपास ही एक सत्संग था, वो लोग हर महीना में 16 तारीख करते हैं। तो मैं 2-3 महीना पहले एक बार गई थी, तो बहुत दिन गया नहीं, तो कल मैंने वहाँ पे भी गई। वहाँ पे भी तो इतनी आनंद मिली, इतनी अच्छी लगी। गुरुजी शुक्राना 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 शुक्राना, इतना आनंद देने के लिए बहुत शुक्राना। गुरुजी के स्वरूप के बिल्कुल सामने बैठी थी और मैं गुरुजी को देख रही थी, भजन सुन रही थी, मैं खो गई थी संगत जी। कल सत्संग में बहुत बहुत खुशी मिली। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी हाँ अभी अभी टेलीपैथी मैसेज में यही बोला, तू संध्या वाला शुक्राना सत्संग कर, तेरे को तेरा इनाम तुझे मिल जाएगा। तो गुरुजी मैं वेट कर रही हूँ आपका वो इनाम मिलने के लिए। आपने इतने सुंदर सुंदर मैसेज देते हो। और हाँ, आपने बेटे के बारे में भी बोला था आज मैसेज में, जे एक विपदा आने वाली थी, मैंने वो रोक दिया तो क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर।
तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। आप ही हो, आप ही रक्षा करोगे। आप टाइम से मैसेज भी देते हो, आप रक्षा भी करते हो। आपका महिमा अपरंपार है गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, दिल से कह रही हूँ गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे पति के बारे में भी आपने टेलीपैथ मैसेज में यही बोला है, जो तेरा पति को हृदय रोग से बचाने के लिए जो उपाय मुझे अपने सत्संग के माध्यम से बताया, मैं वो ज़रूर करूँगी। सचमुच संगत जी, मेरा मैं ना मतलब एंजियोग्राफी करने के बाद ना डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लेना था, तो मैं थोड़ा लेट कर रही थी। मैंने कहा इतनी ठंडा है, सर्दी है, तो कुछ दिन बाद ही करूँगी। लेकिन गुरुजी मुझे सत्संग में ये सुनाया, तू आलस बहुत कर रही है, पति को हृदय रोग से बचाने के लिए तू जो सत्संग में तेरा हिंट है वो तू सुन ले, ये उपाय कर। तो मैंने सुन लिया। तो गुरुजी मैं ज़रूर करूँगी उपाय। आपने सही टाइम सही मैसेज देके हमें अलर्ट कर देते हैं, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना संगत जी, गुरुजी मुझे क्षमा कर देना, हम कृपा प्रार्थी है, क्षमा प्रार्थी है। तो गुरुजी के पावन मंत्र जाप करके मैं यहीं पे सत्संग को मेरा वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी ओम सदा नमः सहाय। शिवाय, जय शिवजी गुरु जी। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत जी को शुक्राना, मेरे गुरु जी को मेरा शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरणों में उनके मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक मैसेज दिया, एक आंटी से सत्संग सुनवाया कि तेरा पति बार बार बीमार पड़ता है, तो तू एक काम कर, एक दीपक में 2 लौंग डालकर और उसको जला दे। तो संगत जी मैंने ऐसे ही किया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कहा एक आंटी के द्वारा कि अमीर बनने के लिए एक उपाय करो। तो जैसे ही मेरे गुरुजी का मैसेज आया, गुरुजी ने बताया कि एकादशी के दिन अपने मंदिर में 1 रुपए का सिक्का लेके और उस पे हल्दी का लेप लगाकर और उसको एकादशी के दिन अपने मंदिर में रख दो और अगले दिन उसको अपने पर्स में उठाकर रख दो, तो तुम अमीर बन जाओगी। मतलब गुरुजी ने ये उपाय बताया संगत जी। और संगत जी एक उपाय और बताया मेरे गुरुजी ने, जो मैंने अभी तक नहीं किया। तो गुरुजी ने बताया कि 11 पीपल के पत्ते लेके और उस पे रोली और दही, रोली और क्या होता है, दही, रोली और हल्दी का लेप लगाकर 3 बार श्री श्री लिखना है सारे पत्तों पे। 3 बार श्री श्री लिखना है और फिर उस 11 पत्तों को कलावे से बांध लो और उसको अपने मेन डोर पे टांग दो। तो इससे आपको पैसे की बिल्कुल कमी नहीं होएगी। तो ये उपाय बताया मेरे गुरुजी ने। और फिर मेरे गुरुजी ने बताया कि एक उपाय और बताया संगत जी, जो मैंने अभी मैंने कर तो दिया था एक बार, लेकिन फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तुलसी माँ के आगे एक दीपक में
चुटकी भर हल्दी और 2 लौंग डालकर हरि विष्णु जी का नाम लेना है। तो इससे आप आपके घर में बरकत भी रहेगी और पैसों की कमी भी नहीं होगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी ने बताया कि बेटी, तेरे बच्चों को बुरी नज़र लगी हुई है, तो तू नींबू को काट के उस पे नमक लगा के और अपने बच्चों के ऊपर से 7 बार वार के उसको गैस पे जला देना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बताया कि तेरे पति के ऊपर एक साया है। गुरुजी, मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप मुझे कहते हो कि मैं तेरे 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 घर से सारा ब्लैक मैजिक और सारी नेगेटिविटी और तेरे पति के ऊपर से ये साया सब हटा हटा दिया मैंने। फिर गुरुजी आपका फिर मैसेज आ गया गुरुजी। तो गुरुजी बस मैं आपसे यही अरदास करना चाहती हूँ कि मेरे मेरे पति अंकल का जो ये हाथ का दर्द है ये ठीक हो जाए, और जिसके लिए मैं बार बार आपको बोलती रहती हूँ। गुरुजी, आप अपनी बच्चे की इतनी सी भी बात नहीं मान सकते। आप तो हर समय मुझे इतने पॉजिटिव मैसेज देते रहते हो कि तू अब खुश हो जा, शुक्राना कर, तैयारी कर ले, आंटी तैयारी कर ले, मिठाई बांट, कि अब से तेरा आज से तेरा गोल्डन पीरियड शुरू हो गया 10 दिन के लिए। संगत जी, मुझे पता है मेरे गुरुजी ने मुझे ये क्यों कहा, क्योंकि संगत जी कल ही मेरी सासू माँ मेरी नंद के पास गई हैं, तो गुरुजी को पता है अभी अपनी मनचाही सब कुछ कर सकती है, इसलिए इसका गोल्डन पीरियड शुरू। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरी छोटी छोटी बातों का इतना ख्याल रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना, हमारे घर से इतने संकट काटने के लिए शुक्राना, आई विपदा को टालने के लिए शुक्राना, मेरे पति अंकल के काम में बरकत देने के लिए शुक्राना, मेरे पति अंकल को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों के ऊपर से संकट काटने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कहते हो कि अब तेरे तेरे तू ये सत्संग सुन, अपने कष्ट कटवा, और तेरे तो कष्ट कट गए हैं, अब अपने पति अंकल के कष्ट कटवा। जो तू इतने सत्संग सुनती है उसी से ही तेरे पति अंकल के कष्ट कट रहे हैं, यही तेरी सेवा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी ने कहा कि हनुमान मंदिर जाकर एक फूल पे हनुमान जी का तिलक लाना है और उसको अपने मेन डोर पे लगाना है दोनों साइड में। तो मैं गुरुजी, मैंने ऐसे ही किया, उसके लिए भी बताने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा कि तेरे 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 बच्चे सक्सेस की ऊंचाइयां छुएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया फेसबुक पे कि तेरे घर में किसी की गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। गुरुजी, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि मेरी बेटी ही होगी। तो बस गुरुजी ऐसे ही मेरे बच्चों को ब्लेस करिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति अंकल के व्यवहार को चेंज करने के लिए शुक्राना। बस गुरुजी, मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे आपको तो सब कुछ पता है, आप मेरे घर में हो, आप कहते हो कि तेरे साथ हमेशा मेरी अदृश्य शक्ति रहती है। अनंतम अनंतम शुक्राना। और सच्चे में संगत जी, मेरे साथ एक मुझे मुझे दिखाई देता है कि एक शक्ति है मेरे साथ में जो हर समय मेरा ख्याल रखती है, मेरे परिवार का ख्याल रखती है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी ने कहा लोहड़ी वाले दिन एक नारियल घुमाकर अपने पति अंकल को के ऊपर से और उसको लोहड़ी की आग में डाल दो। गुरुजी, मैं ऐसा नहीं कर पाई, आपको तो पता ही है। मैं अपने बेटे को लेके दिल्ली गई थी और मैं आपको भी साथ लेके गई थी संगत जी। मेरे गुरुजी ने और मैं संगत जी, मैंने मेरे बेटे की ना रूट किनाल होनी थी। मैं ना बहुत घबरा रही थी, तो मैंने गुरुजी को कहा आप मेरे साथ में चलो, और मैंने अपने
गुरुजी का पॉकेट सबरू अपने बेटे की जेब में डाल दिया जब वो अंदर गया हॉस्पिटल के। तो देखूं क्या कि वो तो ठीक ठाक आ रहा है और उसके तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। संगत जी, ये है मेरे गुरुजी का चमत्कार। इतना ध्यान रखते हैं मेरे गुरुजी हमारा, मेरे बच्चों का, मेरा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, हम दिल्ली से वापस आ रहे थे तो मेरे गुरुजी ने हमें बस में सारे रास्ते पंजाबी सॉन्ग सुनाए कि ले लोड़ी, लोड़ी वाले दिन मेरे सारे पंजाबी गाने सुन। तो मैं तो इतनी मतलब अंदर ही अंदर इतनी खुश हो रही थी। मैंने कहा मेरे गुरुजी मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरे बच्चे का इतना ख्याल रखते हैं। और संगत जी, हमें ना आने में ना 11:15 बज गए रात के। अब ऑटो वाले 300 रुपये मांगने लगे। तो मैंने कहा भैया मैं तो 200 रुपये दूंगी। तो मैंने कहा मैं इतने में आगे चली तो एकदम से एक ऑटो वाला आया और कहता है कि दीदी 150 रुपये लूँगा, आ जाओ यहाँ बैठो। मैं 1 मिनट को तो मैं डर गई कि मैंने कहा कहाँ 300 रुपये और कहाँ 150 रुपये। तो मैं डरते डरते उस ऑटो में बैठी तो उसने ना उस ऑटो के पर्दे भी ढक रखे थे। तो मैं और डर गई। मैंने कहा पता नहीं ये ऑटो वाला सही है या नहीं। पर मेरे तो गुरुजी साथ थे। तो जैसे ही मैं उस ऑटो में बैठी तो उसने एकदम से ही गुरु भोलेनाथ जी का गाना चलाया कि भोलेनाथ जी की कृपा वाला गाना कि मेरे शंभूनाथ जी। तब मेरी जान में जान आई कि मैंने कहा मेरे गुरुजी आ गए, गुरुजी ने अपना बंदा भेज दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और वो घर तक हमें इतने इतने अच्छे से छोड़ के गया। मेरे बेटे को भी उसने बोला कि ये ठीक हो जाएगा, मेरे गुरुजी ने बोला। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही आप हमारे अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिए मेरे गुरुजी। और मुझे मेरे गुरुजी अब तो मुझे नीम करोली बाबा जी के भी मैसेज आते हैं कि आज से तेरा समय अच्छा है और अब तेरे दुख खत्म। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, आप ही कहते हो सब कुछ, आप ही करवाते हो गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस का शुक्राना गुरुजी। आपने कहा मकर संक्रांति पे मुझे खिचड़ी का भोग लगाइयो, तो मैंने अपने बच्चों को कह के आपको मैंने बनाया तो पुलाव था संगत जी, लेकिन मैंने उसमें खिचड़ी वाली दाल के दाने अब उसी में डाल दिए थे। तो मैंने ऐसे करके अपने बच्चे को, कि मुझे पीरियड्स आ रखे थे मेरे, तो मैंने अपने बच्चों को बोला कि गुरुजी को भोग लगा दो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। पता नहीं आप हमारे कौन कौन से कष्ट काट रहे हैं, लेकिन गुरुजी मैं आपसे आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ गुरुजी। मेरी मम्मी का ख्याल रखो गुरुजी। आपने मुझे एक मैसेज में सुनवाया कि उसके अंदर एक आत्मा है। तो गुरुजी, और मैंने आज अपने भाई से भी बात करी थी, शायद आपने सब कुछ सुन भी लिया है क्योंकि आप मेरे घर में ही हैं गुरुजी। मेरी मम्मी को ठीक करिए गुरुजी, वो घर का थोड़ा बहुत काम करें गुरुजी, उनको बिल्कुल ब्लेस करिए, वो ठीक हो जाएं, वो फिर पहले जैसी हो जाएं मेरे गुरुजी। एक एक बेटी की अरदास है आपसे गुरुजी, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत गाड़ी बंगला पैसा कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। जब तक मन की शांति नहीं होगी गुरुजी तब तक कुछ नहीं है गुरुजी। आपको पता है कि पति के बिना एक औरत की ज़िंदगी खराब है, कोई नहीं पूछता, सिर्फ एक आप हो इकलौते गुरुजी। जब से आप आए हो मेरी मम्मी की ज़िंदगी में, मैं मेरी मम्मी ने सब कुछ आपके नाम कर दिया है गुरुजी, लेकिन हमें समाज में रहने के लिए सब कुछ करना पड़ता है मेरे गुरुजी। आप साथ हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन गुरुजी उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी गुरुजी। उनके उनके आज मेरे भाई ने मुझे साफ साफ बोल भी दिया कि उनकी बहू तो बिल्कुल भी नहीं करेगी अगर वो खाट के लग गई गुरुजी। आप उनको समझाइए गुरुजी, आप उनको ठीक करिए और वो फिर पहले जैसी हो जाए। मैं मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी, वो बिल्कुल पहले जैसी हो जाए।
और उनके बहू बेटे हो, उनको समझें, उनके साथ बातें करें, नहीं तो गुरुजी उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। गुरुजी आपको पता है हम दोनों बहनों की ससुराल है, ऐसी नहीं है कि हम उन्हें यहाँ लेके आएंगे। गुरुजी प्लीज़ गुरुजी मेरी इस अरदास को सुनिए, मैं बहुत टेंशन में हूँ इस बात के लिए। गुरुजी प्लीज़, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, इतना साथ देने के लिए, पल पल का साथ देने के लिए। शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ सत्संग कराने के लिए शुक्राना। और गुरुजी ने कहा तेरे 3 अटके हुए काम बनने वाले हैं। संगत जी, मेरी तीनों चीज़ें ख़राब थी। इलेक्ट्रॉनिक जो, जैसे कि मुझे गुरुजी ने बताया भी था कि शॉर्ट सर्किट होने वाला है तेरे घर में, तेरी रसोई में हादसा होने वाला, वो ये सब हादसा वो ही था गुरुजी। संगत जी, मेरे गुरुजी ने वो मेरे 3 अटके काम भी पूरे करा दिए, मेरी मशीन ठीक करा दी, मेरा माइक्रोवेव ठीक करा दिया, मेरा गीज़र ठीक करा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिए। और आप कहते हैं अब तेरे सारे काम बनने लगेंगे एक शुक्राना करने से। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटी की अरदास पूरी करना मेरे गुरुजी। मेरी मम्मी को बिल्कुल ब्लेस कर दीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाए, उनके अंदर से वो साया जो आत्मा है वो सब निकाल दीजिए गुरुजी। मेरे भाई के ऊपर से ब्लैक मैजिक हटा दीजिए, वो फिर पहले जैसी फैमिली हो जाए, वहाँ सब कुछ बिखर चुका है गुरुजी। गुरुजी मैं सच्ची बोल रही हूँ आपसे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जय गुरुजी सदा गुरुजी, सहाय। जय अनंतम गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 नमस्ते गुरुजी। संगत जी। गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर मैं शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि गुरुपा कहते हैं तुम जितना भी शुक्राना करोगे उतने मैं तुम्हारे कष्ट को काटूंगा। तो आज मुझे क्या मेरे मन में डाल रहे मैं वही बोलूँगी संगत जी। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। संगत जी मैं ये बोलना चाहती हूँ, आज तक मेरे पर जितने भी कष्ट तकलीफ जो भी आए संगत जी, मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से हूँ संगत जी। मैं वहाँ पर मेरे पति थे, उस समय हम लोग का बहुत कुछ अच्छा था संगत जी। हमें कोई पैसे की कोई चीज़ की दिक्कत नहीं थी। जब मेरे पति जैसे ऑफ हो गए तो सबके रंग ढंग बदल गए। मेरे जो अपने थे, मेरे अपने घर वाले भी बदल गए। ना वो लोग हमें फ़ोन किया, ना हमें पूछने आए। सिर्फ मेरे पति गुजर गए थे 2 दिन तक, 2-3 दिन तक मेरे बहन भाई आए। उसके बाद कभी वो लोग ना फ़ोन किया, कभी वो लोग ने हमें पूछा कि तुमको कुछ मदद की ज़रूरत है या कुछ भी नहीं। तो संगत जी आप सोच सकते हैं दुनिया में पैसा कितना मायने रखता है। मतलब लोग जिसके पास पैसा है उसके साथ आज के तारीख में दोस्ती करते हैं। और संगत जी आप सोचो, मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी मैंने पैसों की हिम्मत नहीं दी। हम लोग 9 बहन लोग थे और 9 बहनों में से मेरी 2 सिस्टर ऑफ हो गई और बाकी सिस्टर लोग को मैंने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ मैंने किया। बाद में मैंने शादी की संगत जी। तो आप सोचो इतना करके भी आज मेरे अपने हमसे दूर है। तो संगत जी जब इंसान का जब बुरा वक्त चलता है ना, तब कोई अपने नहीं रहते, ना कोई दोस्त या कोई यारी, कोई किसी का नहीं। जब हमारे पास सब कुछ रहता है ना तो सब दौड़ दौड़ के आते संगत जी। संगत जी मेरे चर्च में भी मैं 35 सालों से मैं एक यहोवा की साक्षी हूँ। तो वहाँ पर 35 सालों से थी। बहुत सारे भाई बहनों को मैं घर में खाना खिलाने बुलाती थी। ऐसे छोटे छोटे गेट टुगेदर करती थी घर में। कोई गरीब है ये, उन लोग को मैं मदद करती थी। कपड़े पैसे बहुत सारे मैं मदद करती थी। पर मैंने कभी घमंड नहीं किया कि मेरे पास पैसा है।
हम लोग बहुत एनआरआई भी नहीं थे, हम मिडल थे। हाँ, हमारे पास खुद का मकान है, दुकान है, मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन थे, वो केमिकल के एजेंट थे। पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, मैं एक ब्यूटिशियन थी, मैं भी अपना काम कर रही थी, पार्लर चला रही थी, तो मुझे पैसे की दिक्कत थोड़ी भी नहीं थी संगत जी। जैसे मेरे पति ऑफ हो गए, तब से जो हमारी हालत हुई है, आज तक हम लोग दुख में जी रहे। आज सिर्फ मेरे दुकान का भाड़ा आ रहा है, उससे मेरा घर चल रहा है। मेरा बेटा कामकाज नहीं कर रहा है, क्योंकि वो स्लिप डिस्क से वो बीमार हो गया था, डिप्रेशन में चले गया था। उसकी वाइफ भी नहीं, उसको भी जाके 1 साल हो गया। अभी वो भी तलाक लेना चाहती है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि गुरुपा ऐसा कुछ करे कि जल्द से जल्द वो दोनों अलग हो जाए, ताकि आगे के लिए मेरे बेटे के लिए मैं कुछ और सोचूं। और संगत जी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ खुश रहने की, क्योंकि गुरुपा कहते हैं बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रार्थना भी करती हूँ, गुरुपा से भी बातें करती हूँ संगत जी। और गुरुपा ने मुझे बोला, जो तू चर्च में जो मेरे लिए कर रही थी वो वही वही मैं हूँ, मुझे इधर उधर जाने झाँकने की ज़रूरत नहीं हूँ। मैं बैठा हूँ ना यहाँ, मैं वही हूँ करके हमेशा गुरुपा मुझे मैसेज में ये बताते हैं संगत जी। तो मुझे इतनी खुशी होती है संगत जी। मैं इतनी बीमार हो गई, गुरुपा ने मुझे जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, मैं बड़ा मंदिर 4-5 बार गई, ये गोरेगांव वाला। तो मैं वहाँ पर आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। 31 को भी मैं आई थी, गुरुपा ने बोला था। मैं जैसा मुझे मेरे पास पैसे रहते संगत जी, मैं बड़ा मंदिर आती हूँ, और गुरुपा जब बुलाते उस सब टाइम में मैं आती। कभी-कभी मुझके मेरे पास पैसे नहीं रहते तो मैं नहीं आती हूँ संगत जी। और गुरुपा ने मेरी बहुत हेल्प की है संगत जी। यहाँ तक कि मेरे चर्च वाले भी हमसे पलट गए। उन लोगों ने भी मेरे पति गुज़रे में कोई हमें साथ नहीं दिया। उल्टा मेरे बेटे को लोगों ने बहिष्कृत किया था, ये किया, और मेरा बेटा डिप्रेशन में चले गए। मैंने तो मेरा दुःख कभी बताया भी नहीं संगत जी, मेरे हस्बैंड ऑफ हुए। किसको बताऊँ? मैं प्रार्थना में बोलती थी परमेश्वर को, यीशु को, कि यीशु मेरी हेल्प करो। और तब से लेके जो मेरी हेल्थ में कभी सुधार नहीं आया संगत जी। फिर पता नहीं हम लोग डिप्रेशन में रहते थे, ना खाने की चिंता, ना पीने की, ना सोने का, हमें कुछ होश ही नहीं था। वो 4 साल, फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। फिर लॉकडाउन में ये सब बीमारी आ गई, तो उसमें भी हम लोग घर पे ही थे, मेरा बेटा और मैं, कहीं जाते नहीं थे, आते नहीं थे। तो भी हम लोग परमेश्वर के ज्ञान के बारे में लोगों को हम बताते रहे, फ़ोन के ज़रिए, ज़ूम के ज़रिए हम बातें करते थे संगत जी। संगत जी, वो काम मुझे बहुत अच्छा लगता, मैं 35 सालों से कर रही थी। आज जब मैं 2024 में जब गुरुपा से मिली, तो ऐसे मतलब मेरे मोबाइल में ये मैसेज बार-बार आ रहा था, बेटा मैं ही हूँ, आप मुझे पहचान पे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ऐसे कैसे मोबाइल में ये मैसेज आएगा, और जो बोल रहे हैं वो सत्य है करके। अब क्योंकि संगत जी, मेरे मम्मी के घर में शिव जी को मानते थे, लक्ष्मी जी को मानते थे, हनुमान जी को मानते थे, और शनिदेव को भी मानते थे, और कृष्ण को मानते थे। हमारे घर में लाइन से सारे फ़ोटो थे संगत जी, और मैं भी पूजा पाठ करती थी, मुझे अच्छे से याद है। तो गुरुपा के ने एक मैसेज में मुझे बताया, बेटा मैं 12 साल से तुम्हारा हाथ थामा हूँ, तब से मैं आज तक थामा रहा हूँ। तो देखो संगत जी, गुरुपा मुझे तब से जानते, तब से मेरा हाथ थामा था, और आज तक उन्होंने छोड़ा नहीं। तो संगत जी, अब सोचो, एक पिता से बढ़कर गुरुपा ने मेरे लिए किया। ना दुख में मेरे साथ थे, सुख में भी मेरे साथ में थे। तो संगत जी, ऐसे पिता को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? आप बताओ। कभी-कभी मेरे मन में आता है, नहीं, मैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं गुरुपा का जो फ़ोटो स्वरूप मुझे छोटा-सा मिला था, मैं उसको थोड़ा बड़ा करके एक छोटा-सा फ़ोटो मेरे बेडरूम में रखती हूँ। तो मैं उनसे रोज़ बातें करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा मेरे सारे दुःख दूर हो जाते संगत जी। मुझे ऐसा कुछ भी मेरे दिल में रखने की इच्छा नहीं होती। सारा का सारा मैं गुरुपा के सामने बोल देती हूँ। चाहे दुःख हो, सुख हो, आज अच्छा दिन हुआ, बुरा दिन, सब कुछ मैं शेयर करती हूँ गुरुपा से। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे पिता से ही बात कर रही हूँ। तो मुझे इतना अच्छा, इतनी शांति मिलती है। रात को फिर मुझे बिना टेंशन के मैं सोती हूँ। पहले मैं डर-डर के सोती थी। जब से गुरुपा मेरे जीवन में आए, तब से मुझे डर नाम का चीज़ ही ख़त्म हो गया। कितना ब्लैक मैजिक, गुरुपा ने बोला
तेरे अपने लोगों ने किया, ये क्या गुरुपा ने हमारे घर से सारी नेगेटिव चीज़ सब कुछ निकाल दी है। अब गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है, बंगला गाड़ी सब कुछ उन्होंने ब्लेस किया है मुझे, मेरे बेटे को जॉब भी ब्लेस किया है। तो हम दोनों माँ बेटे गुरुपा को हमने सरेंडर कर दिया है। संगत जी, मैं चर्च जाती हूँ आज भी, कभी संडे को मैं मीटिंग ज्वाइन करती हूँ और गुरुपा के यहाँ भी मैं दरख्वास्त करती रहती हूँ। तो गुरुपा ने एक इसमें बोला था, बाइबल पढ़ो या कुरान पढ़ो या विष्णु कुरान पढ़ो, ये सब पवित्र शास्त्र है, इसमें पढ़ने में कोई बुराई नहीं, हमें पढ़ना चाहिए, हर कोई ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, उससे हमें दूर नहीं करना है। जो भी इंसान पढ़ते हैं उसके मन जीवन में सुख शांति हमेशा रहती। इसके लिए संगत जी, मेरे ऊपर इतना बड़े बड़े पहाड़ टूटे फिर भी मैं हार नहीं मानी। मैं आज तक मेरे बेटे के लिए मेरे चर्च वालों से मैं लड़ रही हूँ, आज तक मैं लड़ रही। बस उस दिन का इंतज़ार है, किस दिन हम लोग वो केस जीत जाए, उस दिन मुझे सुकून मिलेगा संगत जी। वही टेंशन में मैं बीमार रहती हूँ। और कभी कभी मेरा बेटा बोलता है ना, मैं काम नहीं करूँगा, ये नहीं, अब मुझसे होता नहीं, क्योंकि वो एक NRI का बेटा था, उसके पापा ने उसको पूरी तरह बिगाड़ के रखा था। उनको कार्ड देते थे, कार्ड स्वैप करते थे, ये लोग पढ़ाई लिखाई, बाहर घूमना फिरना, कार लेके जाना, होटल में जाना, पार्टियाँ करना, ये सब मेरा बेटा करता था और आज भी करता है, इतना नहीं मगर थोड़ा करता है, क्योंकि आज तो पैसे नहीं है। कभी कभार जाता है तो गएगा तो 3-4 बजे आता है, उसको बार बार फ़ोन करके मुझे बोलना पड़ता है संगत जी। इसके लिए मैं टेंशन में रहती हूँ। जब तक आपको पता है एक माँ को कितना टेंशन रहता है जब तक उसका बेटा अपने घर पे नहीं आता है। मैं बार बार गुरुपा को बोलती, गुरुपा आप ही बोलो उसको जल्द से घर में आया करे ताकि मेरा नींद पूरा हो, क्योंकि संगत जी मुझे थायराइड प्रॉब्लम है, मैंने बताया था यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, और फिशर का था वो तो ठीक हो गया था, अभी दोबारा मुझे वो तकलीफ़ दे रहा है, इसकी वजह से मैं बीमार हूँ संगत जी। फिर दाँत का दर्द वो भी अभी ठीक हो गया है, मैंने वो रूट कैनल किया है, गुरुपा ने बोला तो मैंने वो किया है, ऐसा बाकी कुछ नहीं निकला। और गुरुपा संगत जी देखो आज तक मेरा साथ दे रहे। और संगत जी मैं एक बात बताना चाहती हूँ, गुरुपा को जब भी मैं चंदन का टिक्का लगाती हूँ ना, उनके फ़ोटो के ऊपर ना ऐसे जैसे चंद्रमा कैसे ओ का निशान रहता है, उस तरह का ना उनके फ़ोटो के ऊपर ये 4 ऐसे आए हमेशा आता है संगत। अभी 2-3 दिन से ना बार-बार आ रहा है ऐसे। अब उसका मतलब क्या है संगत, पुराने संगत को आप ही लोग पूछो कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैं तो नहीं जानती हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गुरुपा हमारी जो भी बीमारी अपने ऊपर ले रहे करके शायद वो बता रहे हैं यहाँ पर, ऐसा मुझे लग रहा है संगत जी। और अभी पहले से मेरी स्किन भी अच्छी हो गई संगत जी। गुरुपा ने जैसे बोला था कि जैसे सुबह उठने के साथ कड़ी पत्ता खाना है, मैं रोज़ 2 गिलास गर्म पानी पीती हूँ, हल्दी वाला पानी भी पीती हूँ जल प्रसाद डाल के, गुरुपा जैसे बोलते हैं। और संगत जी मेरी सारी बीमारी ठीक हो गई थी, अभी पता नहीं अचानक मेरे को फिशर का वो दर्द शुरू हो गया। अभी गुरुपा किसके लिए बुला रहे मुझे नहीं मालूम। तो फिर मैं कल अभी डॉक्टर के पास मुझे जाना है, जाके मैं बताऊंगी कि मुझे बार जो गया वो बीमारी फिर से क्यों आया। तो मैं वही डॉक्टर को मैं मिलना चाहूँगी जो मैं पुराने डॉक्टर है उनके पास मेरा रिकॉर्ड है, तो उन्हीं को मैं कल बताने जाऊँगी। तो क्योंकि क्या है ना संगत जी, वो बड़े MD डॉक्टर है ना, वो लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में बैठते, उनके चार्जेस भी 2000 1000 ऐसे। तो इसके लिए मैं पहले पूछूंगी फीस कितना है, फिर उसके अनुसार मैं जाऊँगी संगत जी। संगत जी यही मेरा शुक्राना था। गुरुपा बार बार बोलते शुक्राना कर शुक्राना कर, उनके फ़ोटो के सामने बैठकर मैं शुक्राना कर रही। संगत जी मैं बोलती हूँ गुरुपा इतने अच्छे पिता है, मैं सच में बोलती हूँ, मेरा दिल तड़पता है उनसे बात करने के लिए, और मेरे घर में इतना सारा काम रहता है ना संगत जी, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता मैं गुरुपा से कब बातें करूँ कब नहीं। मैं बहुत तरसती हूँ गुरुपा से बात करने के लिए। मैं बोलती हूँ गुरुपा काश मेरा बेटा काम पे लग जाता, ताकि मैं एक कोई नौकर को घर में रख के मैं आपसे बातें करती, फिर मैं अकेले में कभी कभी सत्संग करते रहती हूँ, मैं गुरुपा के साथ में बैठ कर यहाँ शुक्राना करते रहती हूँ अकेली। कभी कभी मैं, अभी गुरुपा ने बोला है बेटा तेरा बीमारी जड़ से निकालने के लिए तो कड़ा प्रसाद बनाया कर रोज,
और संगत जी क्या होता है ना, मैं बनाने जाती हूँ और ठीक से बना नहीं पाती क्योंकि मेरे हाथों में बहुत दर्द है, क्योंकि मुझे फिजियोथेरेपी करने के लिए गुरुपा ने बोला था। अब मैं बीच में गई थी, इतना पैसे तो नहीं है ना संगत जी, मैं कहाँ से लाऊंगी, तो मैं ऐसे बर्फ़ से थोड़ा सेकाई करती हूँ और मेरी एक तरह की नस भी दब गई है, क्योंकि गुरुपा ने बीच में बोला था, मैंने एक्सरे किया था, मैंने पूरा इसका क्या बोलते हैं उसको, सर्वाइकल का मैंने एक्सरे करवाया था, तो उसमें मेरी गर्दन की इधर नस दबी हुई, तो उसके लिए गुरुपा ने बोला था बेटा जा तुम फिजियोथेरेपी किया कर। तो मैं 2 दिन करती थी, फिर 6 दिन नहीं जाती थी संगत जी, क्योंकि एक टाइम का 125 रुपये है, तो मैं उतना मैं रोज़ नहीं जा सकती। गुरुपा ने बोला था 10 दिन पूरा करेगा ना संगत जी, तभी वो ठीक होता है। अभी उतना तो मेरे पास पैसे नहीं, तो मैं कहाँ से करूँगी संगत जी। इसके लिए मैं गुरुपा को बोली, गुरुपा मुझे माफ़ करना, आपकी बेटी इतना खर्चा नहीं कर सकती, क्योंकि आपका मेरा बेटा काम पे भी नहीं, तो मैं कहाँ से इतने पैसे लाएगी संगत जी। गुरुपा ने जैसे तैसे ये महीने में भी मेरे सारे पैसे का इंतज़ाम भी गुरुपा ने करवा दिया, उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। और आज तक मेरे घर में खाने पीने की कोई चीज़ कमी नहीं, उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। हाँ, थोड़े कपड़े-वपड़े लेने में थोड़ी दिक्कत है संगत जी। अब तक हम लोग दिवाली में मैंने ही सिर्फ़ एक सूट खरीदा था, वो भी 400 रुपए का। मेरा बेटा तो 6 सालों से कपड़ा नहीं खरीदा बेचारा, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं और ना ही मनी है, तो इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए हम चाहते जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसके लिए मैं गुरुपा से बार-बार दरख्वास्त करते रहती हूँ कि गुरुपा जल्द से जल्द इसको जॉब लग जाए, तो वो वहाँ पर बाहर जाना भी उसका बंद हो जाएगा संगत जी। इसके लिए मैं बार-बार शुक्राना करती रहती हूँ, जैसे गुरुपा का मैसेज आता है बेटा शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना करती हूँ। कभी-कभी गुरुपा गुस्सा हो जाते हैं मेरे पर, फिर भी मैं माफ़ी माँगती हूँ और शुक्राना करती जाती हूँ। बोलती गुरुपा मुझे माफ़ करना। और गुरुपा ने कभी मेरे घर में संगत जी आज तक कभी मेरे घर में खाने-पीने की चीज़ की कमी नहीं हुई। उन्होंने भी बोला था दिवाली में लक्ष्मी माता हम अम्बे माता हम तुम्हारे घर आ रहे, शनिदेव भी आ रहे और गणपति जी भी आ रहे, ऐसे करके विष्णु जी भी आ रहे। और संगत जी ये बात सच हुई और मेरे घर में सच में खाने-पीने की कोई चीज़ की कमी नहीं। हाँ, हम खा रहे मगर सब कुछ थोड़ा-थोड़ा खा रहे, बहुत ये नहीं खा रहे, दाल, रोटी, सब्ज़ी ये हम खा रहे। कभी-कभार हम लोग ऐसा कड़ा प्रसाद बनाते, घी वगैरह लाते 1 किलो, मतलब वो 2 महीना कैसा जैसा चलाती हूँ मैं। ये सब गुरुपा का आशीर्वाद है। तो इसके लिए मैं अभी इधर ही विराम लेना चाहती हूँ। कल की तैयारी के लिए मैं अभी यहीं पर मैं मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। अगर कुछ भूल-चूक हुआ हो तो माफ़ी चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ हमारे लिए भी आप लोग भी प्रार्थना करो, गुरुपा से जल्द मेरा प्रॉब्लम, मेरे बेटे को जल्द से जल्द जॉब लग जाए। गुरुपा ने कहा है ना मंगो मत, तो इसके लिए मैं गुरुपा के ऊपर सरेंडर कर दिया है। अभी मैं माँगती नहीं, मैं सब गुरुपा ही करे, जो भी करे उनके ऊपर छोड़ दिया मैं। तो संगत जी अभी मैं यहीं विराम लेना चाहती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, कुछ भूल चुका हो तो माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।